Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Mbeo, your teacher, and today I am going to discuss with you test number 32. I hope you will have done fine today, and I'm sure today you might have achieved 10 out of 10. So let's see how have you performed today. Yes, dear students, you have read the paragraph, you have attempted the MCQs. So my first instruction is to that first of all either make headings of paragraph, encircle the first word, or do the numbering paragraph number 1, paragraph number 2, paragraph number 3, or even line numbering also on one side. So let's straightforward come to our MCQs. First MCQ, the word pedagogy means, meaning पूछा गया है options. A, to lead child about his personality. Option B, to lead child through education. Option C, to mold the child. Option D, to understand the child effectively. So let's see its option. We shall read the first paragraph. What is the right option for us? And the first word of the paragraph is starting. Pedagogy refers more broadly to the theory and practice of leading children. लीडिंग चिल्ड्रन बच्चों की रहनुमाई करना, यहाँ तक बात आ गई. एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ लर्नर्स, कि ये किस तरह उनकी ग्रोथ को लर्निंग में काम करता है. इट टेकन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन. एकेडमिक डिसिप्लिन एजुकेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है. इज़ द स्टडी ऑफ हाउ नॉलेज एंड स्किल्स आर एक्सचेंज्ड in an educational context. So dear students, we have got the hint. Now come to the option. So the word academic, is it clear? That shows us the first word also means to lead, and lead, first line, first word, लीडिंग चिल्ड्रन. दिस इज़ आवर क्ल्यू. ये हमारा लफ्ज़ हमने इसको पकड़ लिया है, इसको हिंट समझा है पहले ही लाइन में. और लीडिंग की ऑप्शन सिर्फ किस ऑप्शन में? ए, बी, सी. ओनली बी ऑप्शन, टू लीड द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन. एकेडमिक भी आ गया. नाउ लेट्स सी व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस. टू रीड द चाइल्ड अबाउट हिज पर्सनैलिटी. टू रीड द चाइल्ड अबाउट हिज. So far there is no reference of personality. Option C, to mold the child. Mold the child जो है that is different concept. It is not, it is done by different persons, not only by teacher. It is done by parents, and other factors are also involved. So this, as far as we have read first paragraph, it has not been mentioned. To understand the child effectively. So it is about leading and teaching, not understanding. So dear students, it's crystal clear, our option B is the right option. Next, 92, pedagogy is the study of. Again, reading the option. Option A, education. Option B, guiding students. Option C, learning process, learning. Teaching methods. Now again, let's find its answer. It is surely in the first paragraph you have read. So guide, come to the paragraph. I will guide you. You will finalize, you will verify your answer. I am again reading the first paragraph, dear students. And the word pedagogy, this is my main hint. मतलब जो हमने MCQ का मेन वर्ड होता है उसको पिक करना होता है, उसको कैच करना होता है, वो जहाँ जहाँ आया उसको देखना होता है, फिर उसकी वेरिएशन देखना होती है. पेडागॉजी से पहला जुमला स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये देखें 2-3 जुमले चल रहे हैं. पेडागॉजीज, चौथी लाइन, pedagogies vary greatly as they reflect the different social, political, cultural, contextual forms. ये जुमला आ गया. अगला फिर हमने पेडागॉजी को देखना है.
Next sentence. This is fifth line. 1, 2, 3, 4, 5. Pedagogy is act of teaching. So it is very clearly mentioned. Again, further let's confirm so that we can differentiate the various options. Next word is written. Theories of pedagogy increasingly identify the student as an agent and teacher as a facilitator. Is it clear? आगे फिर लिखा हुआ है, उससे लाइन चल रही है. It is the study of teaching methods including the aims of education and ways in which goals may be. So teaching methods की स्टडी को pedagogy कहते हैं. ये पैराग्राफ में ये लिखा है. ऑप्शंस में हमारे पास अगेन ऑप्शन डी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने डिस्कस की वही लिखा हुआ है. एजुकेशन इज अ प्रोसेस. इज इट क्लियर? एंड ये डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर. गाइडिंग स्टूडेंट्स, गाइडिंग. नाउ गाइडिंग स्टूडेंट्स गाइड करने के लिए देयर आर डिफरेंट पर्सन्स एज वेल. अगर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो वी आर रिलेटेड टू ओनली टीचिंग मैथडोलॉजीज. लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग ये स्टूडेंट के पार्ट पे है. It is on the part of student that he has to learn. Teacher has to use different methods. So, dear students, option D is the right answer. Next one, the best method to study growth and development of child is option A, psychoanalytical method, comparative method, developmental method. Option D, statistical method. Again, we have to find this answer. Dear students, पहले उस कीवर्ड को पकड़ें कि कहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट और ये इसका जिक्र है. इसके लिए हमने फर्स्ट पैराग्राफ में तो देखा कि उसमें तो इसका जिक्र है, ठीक है. उसके बाद दूसरा पैराग्राफ को जब हम देखेंगे, द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकेंड पैराग्राफ जो है, जो इस चीज़ से, इस टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, ये इस टॉपिक से रेलिवेंट है. Not our MCQ, but this topic has been mentioned here. Child development stages are theoretical milestones of child development. Again, उसी बारे में बात हो रही है. Of some of which are asserted in nativist theories. इन दो लाइनों को देख के I think we can finalize our answer, dear students. Again, साइकिल एनालिटिकल मेथड जो है वो यहाँ पे नॉट मैंशनड है, उसका जिक्र नहीं है. कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव का जिक्र यहाँ पे नॉट मैंशनड कह के कि ये नहीं कंपेयर किया गया कि कौन कौन से मेथड्स हैं. इज इट क्लियर? उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल चीज़ें जो हैं दे आर आल्सो नॉट. तो ऐसी ऑप्शंस को हम इररेलेवेंट तो पैसेज कह के एलिमिनेट कर देंगे. और डेवलपमेंटल मेथड, option C is our right answer, dear students. It's very clearly mentioned in both lines of second paragraph. Next one, PSRN is development, in development implies. ठीक है, इसका जिक्र आया था. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स क्लियरली पैराग्राफ में हमें लोकेट करना आसान होते हैं. ठीक है, हाईलाइटेड होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियरली नज़र आ रहा होता है, बोर्ड में लिखे हुए हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ है चिल्ड्रन मस्ट, ये सेकंड पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा था उससे अगली लाइन यही ही है. चिल्ड्रन मस्ट बी सपोर्टेड इन डेवलपिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहली चीज़. नंबर 2, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, PSRN. तो ये क्लियरली तमाम चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं. अब ये देखते हैं कि ये तीन चीज़ें किस ऑप्शन में इस तरह से डिफ़ाइन की गई हैं. सो लेट्स कम टू ऑप्शंस, डियर स्टूडेंट्स. ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी. ठीक है जी, आंसर मिल गया हमें, लेकिन बाकियों को देखते हैं कि बाकी क्यों नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन, उसमें रिलेशनशिप है, तो पैसेज में ये चीज़ मेंशन नहीं है. न्यूमरेसी है, ये दूसरी चीज़ है, ये नॉट मेंशनड है. सी ऑप्शन, परसेप्चुअल स्किल्स, ये इस लफ्ज़ का एक्रोनिम एब्रीविएशन नहीं है. परसेप्चुअल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड नंबर्स.
So again, dear students, our exact answer is answer A, because it is exactly mentioned without any change. मतलब एक लफ्ज़ का भी डिफरेंस नहीं है, इतना इसी आंसर है इसको हमने लोकेट करने में, लेकिन वेरीफाई करने के बाद हमने टिक करना है, कहीं कोई शेड ना हो. MCQ number 95, dear students, yes. Teacher should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to do the things students. Dear students, आप तो खैर बड़े स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये स्टूडेंट खैर स्टूडेंट ही होता है, ज़रा थोड़े से लोअर एज के स्टूडेंट्स से रेलिवेंट है. तो क्या कह रहा है कि टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे. तो टीचर का बताया जा रहा है कि इंटरेस्टिंग बनाए अपनी चीज़ों को, एंड रिलेट, और उनको मिलाए, मुआवजना करे, दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स. ऑप्शन ए, डोंट नो, कैसी चीज़ें रिलेट करना चाहिए इनको नहीं पता. ऑप्शन बी, ऑलरेडी नो. ऑप्शन सी, विलिंग टू नो. ऑप्शन डी, नॉट विलिंग टू नो. लेट्स कम टू paragraph to find its answer, and we shall read further, dear students. Paragraph number 1, 2, 3 वहाँ पे आए, वहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस किया गया था. Contextualization is putting language items into meaningful and real context rather than being treated as isolated items of language for language manipulation practice only. इससे आगे लाइन शुरू हुई है. In contextualization, the teacher begins activities with what students already know from home, community and school, and तो जी ये पता चल गया कि उसको उन चीज़ों को रिलेट करना चाहिए जो कि वो कहाँ से सीखता है. Begins activities with what students already knows from home, community and school. और फिर वो क्या करता है? And designs instructional activities that are meaningful to the students in terms of local community norms and knowledge. कि जो उसको ऑलरेडी उसका नॉलेज है, जो उसकी कम्युनिटी में नॉलेज है, उससे वो रिलेट करता है. पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है. अब हम ऑप्शन को हमने पढ़ लिया है, ऑप्शन को देखते हैं वंस अगेन. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स क्लियर आंसर? डोंट नो वाली ऑप्शन तो उड़ गई ना, ठीक है. और ऑप्शन बी, ऑलरेडी नो, ये ऑप्शन क्लियरली मेंशन्ड है. लेकिन सी, विलिंग टू नो, नहीं विलिंग टू नो नहीं, ऑलरेडी नो, ऑलरेडी वाला जो लफ्ज़ है वो कीवर्ड है. Not willing to know. So again, this is irrelevant. So dear students, our answer is very clear. Option B is the right answer. The easy answers हैं, and that's why I have given you today 10 out of 10 target. 96, according to John Dewey, school is. हाँ जी, ये आया था, जिक्र आया था इसका, आपने यकीनन पढ़ा होगा, ठीक है, एजुकेशनिस्ट है कोई. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए, social institution, psychological analysis. Option C, philosophical theory. Option D, both A and C. Both A and C के ऑप्शन है. Again, let's see कि इसका क्या ख्याल है. John Dewey, what has he said? Yes, come to paragraph. This paragraph is 1, 2, 3, 4th paragraph, first word. It is clearly starting with his name. Dewey set up a model school to experiment his cherished ideas of education. ठीक है, ये उसकी बात हुई है कि कब उसने किया, क्या कुछ उसने किया. और चौथी लाइन में जाके दोबारा वो कहता है, लिखा हुआ है, to Dewey, the school is an essential social and psychological institution. ये उसके डेफिनेशन है जो उसके जहन में है स्कूल की. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? स्कूल इज एन एसेंशियल सोशल एंड साइकोलॉजिकल, दो लफ्ज़ उसने यूज़ किए हैं. एक तो पहली चीज़ तो ये है कि इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और दो कौन से हैं? सोशल एंड साइकोलॉजिकल.
नाउ कम टू ऑप्शंस. यस, ऑप्शन ए सोशल इंस्टीट्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का लफ्ज़ तो आ गया है, सोशल का भी आ गया है, लेकिन साइकोलॉजिकल का नहीं है. लेकिन मेन वर्ड जो है इंस्टीट्यूशन, के स्कूल एक इदारा होता है. सो ये आंसर जो है हमें अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन बी को देखें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस. एनालिसिस तो तजिया किया जाता है, एक जगह नहीं है, स्कूल एक इदारा है. इस ऑप्शन की वजह से हमारा ये बी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे. सी ऑप्शन, psychological theory, it is not a theory, dear students. He has clearly mentioned that it is an institution. अब institution का मेन वर्ड हमें ऑप्शन ए में क्लियरली मैंशनड है, इस वजह से हमारी ए ऑप्शन राइट हो गई. और जो डी ऑप्शन है, ठीक है, उसमें ए तो मैंशनड है लेकिन सी मैंशन नहीं है. अगर सी जो है कि फिलोसॉफिकल थ्योरी भी वो कहता, ठीक है, साइकोलॉजिकल, उसने साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन किया, थ्योरी नहीं कहा. इस वजह से हमारा सी आंसर जो है वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. हम इस वजह से ऑप्शन डी को रिजेक्ट कर देंगे. डी इज़ नॉट अवर आंसर, ओनली ए इज़ अवर आंसर, डियर स्टूडेंट्स. ओके, कम टू MCQ नंबर 97. सोशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू. डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में यकीनन आपको कुछ ऐसे MCQs भी नज़र आ रहे होंगे जो आपको शायद ये महसूस होगा कि ये तो हम पैराग्राफ ना भी पढ़ते तो हमने इसको अटेम्प्ट कर लेना था. डियर स्टूडेंट्स, नेवर डू सच थिंग. ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी. डोंट यूज़ योर जनरल नॉलेज. जितना मर्जी आसान इजी MCQ रीड इन कॉन्टेक्स्ट के पैराग्राफ में किस एंगल से बात की जाती है, पर एक बात को करने के 100 तरीके. लेट्स कम टू द वर्ड स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू. ऑप्शन ए, एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड students. Option B, educational programs for the differently abled. Option C, training programs for teachers. Option D, training programs for retarded. रिटार्ड होता है जो ज़हनी तौर पे थोड़े से स्लो होते हैं बच्चे, उनके लिए यूज़ होता है. नाउ लेट्स सी, हमें फाइंड करना है स्पेशल एजुकेशन कि ये इसका ज़िक्र कहाँ पे है. और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आप देखें ज़रा, टैलेंटेड और डिसेबल्ड और रिटार्डेड और टीचर्स, इस हवाले से हैं. ये अल्फाज हमें मदद करेंगे ढूंढने में. लेट अस, यू हैव रेड, यू हैव सर्च्ड, एंड नाउ सर्च विद मी एंड सर्च इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे आएँ तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जिक्र है, दूसरा ही लफ्ज़. ये इसलिए आपको एक टेक्निक स्किमिंग की बताई थी कि पहले सरसरी जो है देख लिया करें. बाज़ क्वेश्चन स्किमिंग और स्कैनिंग, इन दोनों से सरसरी देखने से बाज़ आंसर पहले दूसरे लफ्ज़ में हमें एटलीस्ट पैराग्राफ का आइडिया हो जाता है. दोनों टेक्निक्स को अप्लाई करें. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर ऑफन आइडेंटिफाइड एज अ चाइल्ड इज़ इन स्कूल. तो जिक्र आ गया डिसेबिलिटीज़ का. द स्कूल में यूज़ अ प्रोसेस कॉल्ड response to intervention to help identify children with learning disabilities. कि जनाब उनको एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए. स्पेशल टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डायग्नोसिस. अब स्पेशल टेस्ट्स, इसका मतलब है कि ये इन बच्चों को देखने के लिए रूटीन नहीं फॉलो की जाएगी, बल्कि रूटीन से हट के मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे उनके डायग्नोस करने के लिए. अगली लाइन, learning disabilities have nothing to do with how smart a reader is, rather a person with the learning disabilities may see. ये बाकी उसकी फर्दर डिटेल बताई गई है. तो हमें MCQ पे वापस आते हैं कि क्या हमें आंसर मिल गया. लेट्स कम टू द MCQ. डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू, तो क्या बात आई थी? एजुकेशन फॉर टैलेंटेड, नो, टैलेंटेड नहीं है. ये ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो डिसेबल्ड का जिक्र है, माजूर किसी भी वजह से जो बच्चे की किसी की काबिलियत से महरूम हो जाते हैं. ऑप्शन बी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है कि उनको दूसरे बच्चों से हट के दूसरे तरीके से वो सीख सकते हैं. सी ऑप्शन, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट टीचर्स, इट इज़ अबाउट स्टूडेंट्स. सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गई. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड, सो ये रिटार्डेड का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना, डिफरेंटली डिसेबल्ड. ठीक है, मतलब उनकी सलाहियतें ज़रा और एंगल की होती हैं. ये पैराग्राफ में स्पेशल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है वो भी. ठीक है, इस लिहाज से
हमारा जो ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी इज एग्जैक्ट आंसर. MCQ number 98, dear students. What type of educational evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learners? किस किस्म की जो है evaluation required है? Option A, placement. Option B, summative. Option C, continuous. Option D, diagnostic. So let's see. हमें ये सेम जो पिछला MCQ पढ़ा है, ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, तो हम उसी पैराग्राफ पे चलेंगे, वहीं से हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा. येस डियर स्टूडेंट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सर्च विद मी. स्पेशल वाली लाइनें हमने पढ़ ली थी, मैं अगेन वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ. स्पेशल टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डायग्नोसिस. ओ, लफ्ज़ मिल गया कि स्पेशल डायग्नोसिस जो है वो करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैव नथिंग टू डू, ये बाकी सारी चीज़ें वही हैं. नाउ कम टू ऑप्शंस अगेन. लेट्स फाइनलाइज, लेट्स लॉक द आंसर. तो डायग्नोस्टिक, डी ऑप्शन. लो जी, किस किस्म की कि डायग्नोस्टिक जो है प्लेसमेंट और नहीं, ये इरेलेवेंट टू पैसेज है. समेटिव आल्सो नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज है. कॉन्टिन्यूस नॉट मेंशन्ड है. ओनली वन वर्ड इज मेंशन्ड, डायग्नोस्टिव इवेलुएशन के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होने चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर ऑप्शन डी इज राइट आंसर. MCQ number 99. As people grow older, dash, comma, the dash of learning declines. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देखते हैं कि ये जिक्र कहाँ पे आया था. पीपल के बारे में हमने पैराग्राफ जब पढ़ा था तो दिस वाज मेंशन्ड अगेन इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. इसी पैराग्राफ में मेंशन था. डियर स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, लाइन नंबर 5, एंड से पढ़ रहा हूँ. There are strategies a person can learn to make it easier to cope with these differences as we get older. Older का जिक्र आ गया जी. The effect of cumulative damages can catch up with us. फिर आगे देखें. Shrinking in gray matters. Reduction in reaction speed. Reduction और speed का जिक्र आ गया. Is it clear? फास्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी डिके, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है. स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, अगेन स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड आ गया. इज इट क्लियर? इन अदर वर्ड्स, द फैकल्टी ऑफ लर्निंग कैन सर्टनली स्लो डाउन विद एज. तो 3 जुमले हर चीज़ को, ज़ाहिर है कि एक अंडरस्टूड सी बात है, उसी पे फोकस कर रहे हैं. सो लेट्स फाइनलाइज द आंसर नाउ. तो लर्निंग, ठीक है जी. एग्जैक्ट वर्ड जो मिल गया, बेसिकली पावर का तो जिक्र नहीं है, पावर नॉट मैंशनड. वी आर रीडिंग अबाउट लर्निंग, मेमोरी, ये चीज़ें देख रहे हैं. ऑप्शन ए को रिजेक्ट कर देंगे. ऑप्शन सी, वाइब्रेंसी, वाइब्रेंट होना, एक्टिव होना, इसका भी जिक्र नहीं है. डी, क्वांटिटी, quantity of nothing has been mentioned, and only option B is right answer, dear students. Speed of learning declines. Last MCQ, which is different from other 3 with respect to fine motor movement. साइंस स्टूडेंट्स हैं, मोटर मूवमेंट आपने सुना होगा. मोटर क्या करती है? मोटर का एक्चुअली इंग्लिश में मतलब होता है ट्रैवल, उसको किसी चीज़ को हरकत में लाना, एज अ वर्ब. मोटर मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. और कौन सी? फाइन. डियर स्टूडेंट्स, ये फाइन मोटर मूवमेंट से मुराद ये नहीं कि मोटर कितनी अच्छी चल रही है, रादर इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स. ये जो है कि जो हम अपने मसल्स को मूव करते हैं उससे रेलिवेंट है. और फाइन एक्चुअली ये देर आर 2 टर्म्स मोटर मूवमेंट के लिए. एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं और एक फाइन मोटर स्किल्स हैं. फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें हमारे मसल्स की मूवमेंट तो होती है लेकिन लेस. मसलन कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं. और ग्रॉस में जो है
आप रनिंग जंपिंग मतलब मसल की मूवमेंट एक से दूसरी प्लेस पे हो रही होती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स. तो फाइन से मुराद मतलब ये है इन्वॉल्विंग स्मॉलर मस्कुलर मूवमेंट इसमें होती है, हैंड और रिस्ट तक की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है. नाउ अगेन कम टू आवर ऑप्शंस डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री. बाकी तीन से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू. अब ज़रा देखें, डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब वो जो डॉट जॉइनिंग है, डिक्टेशन और हैंड राइटिंग है, ये तीनों तकरीबन इसमें अगर आप देखें तो ओनली हैंड, ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. लेकिन सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी है, डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट किस्म की मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, डिफरेंट किस्म का स्किल है डियर स्टूडेंट्स. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या टारगेट दिया था? 10 out of 10. Have you got? It was easy test today, and if there is such a test, don't be overexcited. Attempt it very carefully. जितना टेस्ट easy आए उतनी केयर आपकी बढ़नी चाहिए ताकि एक भी नंबर मिस ना हो. Hope you have done fine. Allah Hafiz till next test.